So that is the TDS, right? We are taking the same example, okay? So for the employer, we are pretty much clear about all the steps that we have to follow, right? That for TDS, let me just open that as well. My screen is visible now. It should be visible to everyone. Yes, ma'am. TDS for the employer, we are clear that we have to write down the TAN number here, the name of the employer here, income chargeable under the salaries that we'll take from the salary sheet, right? उसका जो end का जो भी value होगी, which is the taxable value, that we'll take. और ये जो TDS है जो उसने काटा है, whatever value is given in the question, that we'll completely write here. So this is clear. Now the next part is for TDS in case if it is deducted by either bank or by in case he has won any kind of a lottery or any house race में जो उसने amount कुछ जीता है उसका जो payment हुआ है वो TDS काट कर payment हुआ है क्योंकि there are a lot of requirements at the time of making the payment that it is if it is greater than particular amount then the person whosoever is making the payment he has to deduct the TDS, that is the tax, and then make the net payment. So there are many provisions regarding to this. House rent में भी provision होता है. If the rent is greater than 2 lakhs, then the tenant has to deduct the tax and then pay it to the owner. So there are a lot of provisions. So you don't have to go that much into the detail. Okay. So in the question, if it is mentioned that the TDS has been deducted apart from the employer. Okay. Employer का तो we have table. बट अगर अपार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर है कोई भी अगर बैंक है या कोई भी पेमेंट कर रहा है टीडीएस काट के वो आपका इस सेक्शन में आएगा इस टेबल में आएगा ठीक है थर्ड टेबल में नहीं कर रहे हम ठीक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली वी आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस टेबल 2 ठीक है सो यहाँ पे तो आपको सेल्फ करना है अपना ठीक है टीडीएस क्रेडिट रिलेटिंग टू सेल्फ अदर्स दिस तो दिस इज सेल्फ इसके बाद tan यहाँ पे we have to write and we have mutually decided about the agreed tan number which is functioning in the excel sheet right it is MUM तो उस पे आप कोई डिस्कशन नहीं होगा क्वेश्चन पेपर में भी आपका MUM ही आएगा तो you will not face any issue इसके बाद हमारा आता है कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज बाय जगतपुरी लॉटरी अथॉरिटी दिस इज द tan of tenant इट मींस टेनेंट ने कुछ अमाउंट डिडक्ट किया है आपका ठीक है 15,000 का अब इस केस में इनिशियली व्हाट वी वर डिस्कसिंग वी वर काइंड ऑफ ब्रॉड फॉरवर्डिंग द अमाउंट और ब्रॉड फॉरवर्ड में यहाँ 2018 हम सिलेक्ट कर रहे थे विच इज एंटायरली रॉन्ग ठीक है आई हैव डिस्कस्ड दिस विद सर एज वेल this should not be the case because in the question it has not been mentioned that the TDS is being brought forward ठीक है it is being mentioned that he has earned certain kind of income in the previous year और उस प्रीवियस ईयर में जो उसको इनकम मिली है दिस इज नेट ऑफ टीडीएस सो इन शॉर्ट यहाँ पे वी शुड नॉट सिलेक्ट एनीथिंग यहाँ पे आपको सिलेक्ट ही छोड़ना है ठीक है और यहाँ पे वील कीप दिस एज ब्लैंक बिकॉज इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस बिकॉज इट इज नॉट गिवन दैट वी आर देर इज एनी अमाउंट विच इज ब्रॉट फॉरवर्ड इन टू दिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर ठीक है हमें जो अमाउंट है दिस इज एक्चुअली बीन डिडक्टेड इन द प्रीवियस ईयर So यहाँ पे we have to keep it blank. Now when you come to this column, TDS of the current financial year. It means TDS deducted during the financial year. So this is the relevant cell. Okay. Here we will write 15,000. Okay. This is 15,000 which is actually being deducted in the previous year. So we'll write 15,000 here. Then these are gray cells. So we don't have to do anything. Then TDS credit being claimed this year, it means whatever the tax which is being deducted in the previous year, do you want to claim that tax in this year? So definitely we want to claim that because TDS is what? It means whosoever has deducted it, he has paid the tax on our behalf to the government. ठीक है, so जो हमारी जो भी tax liability होती है, उसमें से this TDS should be deducted because this is already being paid to the government. So we want to claim. ठीक है सो जो क्लेम कर रहे हैं दिस शुड बी द एग्जैक्ट अमाउंट दैट इज 15,000 कि जो मेरा जिसने मुझे पे किया जितना अमाउंट डिडक्ट किया वो सारा का सारा मैं इस प्रीवियस ईयर में आई वांट टू क्लेम दैट अगर मैं क्लेम नहीं करती तो नेक्स्ट ईयर ये ब्रॉट फॉरवर्ड हो सकता था
ठीक है, बट मैं अभी ऐसा कोई एजम्पशन नहीं ले रही हूँ। मेरा जो टीडीएस पिछले साल कटा है एंटायरली आई एम क्लेमिंग फॉर दैट प्रीवियस ईयर ओनली। ठीक है, यहाँ 15,000 हो गया। नेक्स्ट, claim in the hands of spouse this, so it is not being mentioned, so we are keeping this as it is. ठीक है, we are keeping this as blank क्योंकि spouse का कोई relation नहीं। Then come to this. Now this is very important. It is asking about to which income this tax has been deducted. Okay, so this is the corresponding receipt. So for that you have to write down about the gross amount on which this particular amount has been deducted and the head of income, means under which head this particular TDS is being deducted. So when you read the question, it is 15,000 for the tenant. I think it is not from the tenant. There is a misprinting. This is from the lottery. So this is not from tenant, basically from the person who he has won the lottery. So in this case, आपका जो नेट ऑफ टीडीएस है 30%, याद है 35,000 को डिवाइड बाय 70% किया था, जिससे हमें आ गया था कि 50,000 इज द ग्रॉस अमाउंट, और ये 50,000 ही हमने अपने अंडर अदर सोर्सेज इनकम में ग्रॉस अमाउंट लिखा था, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 50,000। तो यहाँ पे आपका वही 50,000 आ जाएगा और ये हेड ऑफ इनकम आ जाएगी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, जब आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे आएगा टीडीएस क्रेडिट बीइंग carried forward, ये जीरो आना चाहिए because we are not carrying any amount to the next year. Whatever the amount which is deducted, I am claiming the entire amount in this year, and I am telling the income tax authorities that this was the gross amount on which this TDS has been paid, and this is the head of the income to which this particular income relates to. ठीक है, once this is done, then you validate your sheet. It should be okay. Any doubts to anyone? This concept should be clear because this is 100, this particular concept will gonna come in your practical paper. This is a 100% guarantee that TDS, particular TDS will definitely come. एक भी आ सकता है, एक से ज्यादा भी आ सकता है, हो सकता है यहाँ पे 2 TDS भी आ जाए। ठीक है, so in case of any doubts, please feel free to ask me right now. Or once you validate this, then when you go to your part B, total income, there when you calculate your tax, so I'll just show you. Calculate tax. Okay. After the calculation is done, you come at the bottom of this page and see here, taxes paid. Okay. So देखो taxes, advance tax 34,000 आ रहा है, ठीक है, जो भी हमने एडवांस टैक्स पे किया है, और टीडीएस में कितना आ रहा है 23,15,000। अगर आप देखोगे तो हमारा 23 लाख प्लस 15,000, 23,15,000. So this is the another way to cross check your answer, that whatever TDS amount you have filled, whatever the advance tax you have filled, it should be matched with the tax paid to the government. ठीक है, सो ये आपका एडवांस टैक्स आ गया, ये आपका टीडीएस आ गया, इतना टोटल आपने टैक्स पे कर दिया, और ये अब आपका बैलेंस है विच यू नाउ हैव टू पे टू द गवर्नमेंट. Is this concept clear? It should be clear to everyone, and I'm gonna upload this video as well because this is very important. Ma'am. Yes. Ma'am. पूछो बेटा. मैम ये जो टैक्सेस पेड के ऊपर वाला सेक्शन है, इंटरेस्ट एंड फी पेएबल, मैम ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है? क्योंकि मेरा ये ऊपर वाले कॉलम में जीरो आ रहा है. बेटा ये ऑटोमेटिक है, अगर मेरे वाला फाइल लिए ना, दिस इज अ बिलेटेड रिटर्न. ओके, मेरे ख्याल से दिस इज अ बिलेटेड रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट. So they are calculating the whatever the interest rate which is occurring, the income tax government is calculating in its own. I did not enter any value. I just selected this after due date. आप practice करोगे, you might be on the due date, before the due date. Sorry, आपकी original return होगी, मेरी after due date है.
बट वैल्यूज आप बाकी सारा सेम है, ये तीनों वैल्यूज मेरी डिफरेंट आ रही हैं आपकी से। सारी वैल्यूज सेम है? यस मैम, सारी वैल्यूज सेम है, बस वो 3 कॉलम्स के अलावा, और सारी शीट्स भी सेम है बिल्कुल। लेट मी जस्ट चेक, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज द प्रैक्टिस 3 सॉल्यूशन ओनली व्हिच आई हैव टेकन, आई हैव नॉट चेंज्ड एनीथिंग एज सच। वेट, इट इज टेकिंग टाइम। क्या प्रॉब्लम है, लोडिंग हुई जा रही है इसकी। आपने कैलकुलेट टैक्स भी अभी दोबारा किया है मेरे साथ? यस मैम। Interest for default, interest in payment of advance, interest for deferment, fee for default in, because these are na fields, these are automatic, there must be something. कुछ नहीं होता बेटा, अगर मैच नहीं करा, might be there something which has got changed, so it is perfectly fine, don't worry about it. I've used the ओके same मैम। file. When we do it from the very beginning, then definitely our answers will match, because in this case ओके now we are not doing any kind of a calculation, it is coming from its own. Green cell nahi hai na ye, so it means there मैम। must be something in the sheet. ठीक है, after this is done, I am quickly revising about मैम house rent as well, because in the मैम last टीडीएस class there was, एक second बेटा बस, I am just completing, ठीक है? So last class में क्या हुआ था, there was disruption and my recording didn't save, इसलिए एक बारी मैं हाउस प्रॉपर्टी और करा देती हूँ आपको, बस रेंट वाला कंसेप्ट, उसके बाद we'll just stop the recording and I'll upload this video. हाँ, अब बोलो बेटा क्या कह रहे थे मैम TDS वो में? जो टीडीएस वाली शीट में, हाँ मैम, हम्म, नीचे यहाँ पे मैम जो ग्रॉस अमाउंट है मैम वो लिखना होगा हर बार, ये आपको लिखना पड़ेगा, that you have to type. और हेड ऑफ इनकम भी मैम लिखना पड़ेगा। yes, usually it is income from other sources, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई फिक्स डिपॉजिट था हमारे लास्ट वाले में, उसमें 10 लाख पे 10 लाख पे 1 लाख का टीडीएस कट रहा था, तो यहाँ पे फिर आप वो 10 लाख लिखते हैं, और यहाँ ओके पे आपका 1 लाख आ जाता है, यहाँ पे भी 1 लाख आ जाता। इन शॉर्ट मतलब देयर शुड बी एन अंडरस्टैंडिंग दैट whatever TDS is being deducted, it should be claimed in the same year, will not carry forward it. ठीक है? ओके। और मैम जिस दिन हमारा प्रैक्टिकल होगा उस दिन हमें दोनों फाइल्स मेल पे मतलब मेल करनी है या फिर? This I will let you know, because we are still in the process of finding the most suitable platform for you all to upload your answers, because there are some issues in the this classroom app as well as on the Teams. So we are मेल abhi, इजी रहेगा वैसे, मेल मतलब क्योंकि हो रहा था, मैंने चेक किया था। मेल इजी रहेगा, बस ये है कि मेल में कुछ ऐसा ना हो कि आप लोगों के मेल्स ना मिस हो जाए, अदरवाइज एंड में मैंने भी यही सोल्यूशन दिया कि दैट इफ नथिंग विल वर्क देन मेल इज द बेस्ट सोल्यूशन। सो लेट्स सी, वैसे भी ऑनर से पहले प्रोग्राम में है, तो अगर कुछ होगा गड़बड़ तो हमें प्रोग्राम से वैसे ही पता चल जाएगा, सो डोंट वरी। अभी हम लोग नॉर्मली दोनों फाइल्स पे करेंगे काम, और उसमें एंड में देखेंगे फिर जैसे भी करना होगा, या तो ड्राइव होगा तो ड्राइव का लिंक दे देंगे आपको कि आप ड्राइव पे अपलोड कर दो, जैसे भी होगा वो आई लेट यू नो, बट मेक श्योर that you have to practice these questions in such a way that you will be able to complete the question within 45 minutes. वैसे you will get extra time, but you never know that कुछ इंटरनेट लैग इशू ना हो जाए, because these files are very heavy, right? कभी ऐसा ना हो कि आप लोग सेंड ही ना कर पाओ, तो इस वजह से थोड़ा अपना टाइम लेकर चलना। और स्टार्टिंग में ही मैंने पहले ही इंस्ट्रक्शंस दे दिया, और मैं बार बार दे रही हूँ कि रीड ओनली में काम मत करना, क्योंकि बच्चे बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं और रीड ओनली में काम करते हैं, और मैं बता रही हूँ आपको, मैंने 20% का रेट बता रही हूँ, मैं यूजुअली 20% बच्चों की फाइल उड़ती है, क्योंकि वो रीड ओनली पे काम कर, मुझे नहीं पता कि टीचर्स बताती नहीं है क्या प्रॉब्लम होती है, बट 20 तो ठीक है जाती है, तो आप दोबारा से जल्दी से कर लोगे, बिकॉज यू हैव इनफ टाइम। इन द एक्चुअल केस जब ओपन होते हैं हमारे कॉलेजेस, उसमें जो प्रैक्टिकल होता है उसमें 1 घंटे का स्ट्रिक्ट टाइम होता है, एक्सटर्नल इन्विजिलेटर कभी भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं देता, कभी भी। तो बस ये याद रखना कि रीड ओनली में काम ना करो।
ठीक है, अब मैम जल्दी से। मैम हाँ मैम ये जो अपने क्लास ग्रुप में सॉल्यूशन है ना, जो अभी आपने ओपन कर रखा है। हाँ हाँ, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर, बस एक डिफरेंस है शायद कि मैंने जो वो था, क्या कहते हैं आपका डिडक्शंस, उसमें 20,000 डिलीट कराया था, ये भी मैंने उनसे पूछ लिया है। एक्चुअली एनपीएस में ना यू कैन टेक एन अजम्पशन, कभी कभी ये अजम्पशन होती है दैट एम्प्लॉयर इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग in matlab along with the employee, sometimes only the employee is contributing. So when only employee is contributing, तो यहाँ पे 20,000 आ जाएगा, जैसे नॉर्मली आपका एनपीएस दिया हुआ है 20,000। और अगर आप ये assumption ले रहे हो that employer is also contributing along with employee, तो यहाँ आ जाएगा। So it is completely safe that you don't take this assumption. Whatever amount is given, just write it entirely. Don't assume that it is being contributed by employer as well. ठीक है, मैम एक बार जैसे हम पार्ट बी पर आना आप अपनी शीट में। हम्म उसमें मैम जो आपकी ये 2 मिनट टैक्सेस एट टैक्स पेबल एट ऑन टोटल इनकम वाला सेक्शन है जो। हम्म कहाँ कहाँ कौन सा 2 है मिनट। बेटा, आप मेरे को रोल नंबर बताओ, ये जो है ना यहाँ पे सीरियल नंबर्स लिखे हुए हैं, ये बताओ मुझे। पार्ट बी का सेकंड वाला सेकंड। टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, यस। यस मैम एग्जैक्टली सेम ही है मेरी फिगर्स, बट फिर भी डिफरेंस आ रहा है। जो आपने शीट भेजी है ना, उसमें ये जो 2A है और 2B है, इसका एडिशन ही रॉन्ग है उस एक्सेल शीट में। कौन सा 2A 2B, क्योंकि ना ये सर की एग्जैक्ट फाइल्स हैं जो मैंने अब पता नहीं उन्होंने अगर मैंने मत करो, क्योंकि जब मैं जो भी आप लोगों का क्वेश्चन पेपर सेट करेगा वो एंटायरली क्वेश्चन उसको दोबारा से सॉल्व करेगा, वो हमें नहीं पता है ना। So might be don't worry about matching the values. ठीक है, अभी the concept should be clear and whatever questions we have done, it should be in the same manner only. अगर आपकी फाइल में कोई भी इशू होगा ना, आपकी XML जनरेट ही नहीं होगी, let me tell you. अगर XML जनरेट हो जाती है ना, it means your answer is correct. ठीक है, हो सकता है कि थोड़ी बहुत वैल्यूज में डिफरेंस हो, बट योर आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली, वील अज्यूम दैट दिस इज करेक्ट, अदरवाइज XML ही नहीं जनरेट हो पाती। ठीक है, नाउ फॉरगेट अबाउट मैचिंग द आंसर्स, वील सी, अगर नेक्स्ट वीक में टाइम हुआ तो एक दिन बैठ के एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और उसमें बिल्कुल आंसर्स मैच कर लेंगे इंटायरली, जो मेरे आंसर्स होंगे वो आपके आंसर से मैच कर लेंगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, इसके बाद एक बार हाउस प्रॉपर्टी का रेंट वाला और कंसेप्ट दोबारा से बस क्विकली वी आर रिवाइजिंग, अदरवाइज वैसे वो क्लियर था आप लोगों को, बट फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं बस, सो दैट एक बार वीडियो बन जाएगी इसकी भी। ठीक है, सो दिस वाज द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दिस वाज द एड्रेस, सो वी हैव पुट द सेम एड्रेस। ठीक है, सो दिस इज 15AB, this is the town, this owner is self, it is not being shared with anyone. ठीक है, so this is next, we'll come up to this particular table, we now here specify that it is a let out property, because initially in all the 3 questions we have selected this as self occupied, और self occupied में we are clear that municipal tax is not allowed to be reduced. अब ये let out है आपकी, तो let out में जो भी आपका rent given होगा that you will take entirely here. And now there is one more important point, यहाँ पे no TDS लिखा हुआ है, but अगर TDS लिखा आ जाता है, this is net of TDS, now I am confident that you guys know how to convert this into gross figure and how to go to the TDS sheet. There you have to write about that this was the tax which is deducted in the previous year. I want to claim that in the previous year, this is the total gross amount of the house property rent that we have received, and it is under the head of your house property. Is it clear? अगर यहाँ पे net आ जाता है तो कर लोगे ना, प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अगर मैं क्वेश्चन में ऐसे कभी पूछ लूं आप लोगों से कि दिस इज नेट टीडीएस, द कंसेप्ट इज क्लियर सबको, नेट होगा तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन
और हाउस प्रॉपर्टी में ग्रॉस आ जाएगा, बट जो टीडीएस कट है वो अदर सोर्सेस का। क्लियर है ना सबको कंसेप्ट? अगर है डाउट तो अभी पूछ लो मेरे से कि अगर यहाँ पे नेट टीडीएस आ गया तो क्या करना है। सबको क्लियर है? तो यहाँ पे ऑलरेडी ग्रॉस अमाउंट मैम बता दो एक बार। मैं बता देती हूँ। अगर जैसे सपोज यहाँ पे आता है नेट टीडी, ठीक है, नेट टीडीएस सॉरी नेट अमाउंट दिया हुआ है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 20%। ओके, 20% का आपको रेट दिया हुआ है कि ये टैक्स 20% पे करने के बाद ही आपकी वैल्यू है। तो उसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, ग्रॉस अमाउंट निकालोगे। सो 21,40,000 डिवाइड बाय 80%, ठीक है, सॉरी 21,40,000 इंटू 100। सो आपका ग्रॉस अमाउंट है 26,75,000। इट मीन्स ये जो आपका अमाउंट है ये टैक्स डिडक्ट होने के बाद है। अगर नेट है, नेट का मतलब क्या होता है, ग्रॉस माइनस टैक्स इज इक्वल्स टू नेट। तो हम लोगों ने सबसे पहले नेट वाली फिगर को हमने ग्रॉस फिगर में कन्वर्ट कर लिया बाय डिवाइडिंग दिस विद 100 माइनस व्हाटएवर द रेट ऑफ टैक्स व्हिच इज गिवन। इस केस में आई एम अज्यूमिंग हाइपोथेटिकली कि इट इज 20%, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा होगा। तो आपने निकाल लिया ये ग्रॉस है। अब आप क्या करोगे, ग्रॉस को आप एंटायरली 26,75,000 को यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, कितना है 26,75,000, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट, आप ले रहे हो ग्रॉस, हमेशा ग्रॉस लेना है आपको, ठीक है। ग्रॉस हो गया, उसके बाद लेट आउट प्रॉपर्टी है, सो 80,000 अलाउड टू बी रिड्यूस, सो 80,000 आपने यहाँ पे लिख दिया, वो अपने आप कैलकुलेट होके आ गया। उसके बाद अपने आप आपका 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई, जो यूजुअली सबको मिलती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में नहीं मिलती, क्योंकि हमेशा आपका जो जीएवी होता है वो 0 होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड में। तो 0 को 30% से करोगे तो 0 ही आएगा, तो उस केस में नहीं मिलता। उसके अलावा आपको लेट आउट में हमेशा 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। उसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल। तो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में देयर इज अ लिमिट ऑफ 2 लाख ऑफ रुपीज, बट इन दिस पर्टिकुलर लेट आउट प्रॉपर्टी देयर इज नो लिमिट। ओके, बट सोचना ही नहीं है दिमाग में, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना वो वैल्यू डाल के देख लेना एक बारी। अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी ना तो वो पहले ही एरर दिखा देगा कि 2 लाख से ज्यादा नहीं लिख सकते। यहाँ पे नहीं था, लेट आउट था, इस वजह से आप कुछ भी अमाउंट लिखोगे सारा का सारा आपको मिल जाएगा डिडक्शन, ठीक है। सो पूरा अमाउंट इसका 5,10,000 जो था, दिस इंटरेस्ट, दिस इज एंटायरली गिवन। आप लोगों को वैसे मैं बता देती हूँ फॉर योर जनरल अंडरस्टैंडिंग, हम लोगों के पास एक हाउस रेंट अलाउंस भी होता है, राइट? हमने सैलरी में किया हुआ है ना हाउस रेंट अलाउंस। इस क्वेश्चन में ना हाउस रेंट अलाउंस नहीं होना चाहिए आपका, इसमें है, विच इज रॉन्ग। आपको मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ, क्योंकि आपका जो टैक्स डिपार्टमेंट है ना, दोनों में से एक ही चीज देता है। वो ये कहता है कि या तो आप हाउस रेंट अलाउंस ले लो, कि आप ये बता रहे हो गवर्नमेंट को कि आप रेंट पे रहते हो, और जो भी आपने रेंट पे किया हुआ है ना उस पे आपको डिडक्शन मिल जाता है। अगर आपको याद हो, हमारी 3 कंडीशंस होती है हाउस रेंट अलाउंस का एग्जेम्पशन निकालने के लिए। या फिर गवर्नमेंट कहती है कि या फिर तुमने अपनी प्रॉपर्टी खुद की बना लिया और उस पे तुम इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ठीक है, उस इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लो। दोनों में से आप सिर्फ एक ही चीज का ले सकते हो, आप दोनों एक साथ नहीं ले सकते। आप गवर्नमेंट को बेवकूफ नहीं बना सकते कि आपकी खुद की प्रॉपर्टी भी है, वो तो आपने रेंट पे दे दी है, जिससे आपको रेंट इनकम आ रही है, और जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो उसका भी आप डिडक्शन ले रहे हो। एट द सेम टाइम आप खुद रेंट पे रह रहे हो, और जो रेंट पे कर रहे हो उससे आप अपने एचआरए पे भी एग्जेम्पशन ले रहे हो। ये दोनों चीजें कभी भी प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में ट्रू नहीं होती। ये क्वेश्चन बना दिया, बट प्रैक्टिकलिटी में आई एम टेलिंग यू कभी भी नहीं होगा ऐसा। अगर आप अपना इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हो ना, तो पूरा आपका एचआरए टैक्सेबल होगा, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती। और शायद ये नोट्स में भी लिखा होगा आप लोगों के, एक बार नोट्स भी देखना। आई डोंट नो वेदर आई हैव मेंशन्ड दिस और नॉट, बट दिस इज द प्रैक्टिकल रियलिटी, दैट in case you are claiming the deductions for the interest payable on a housing loan, you cannot claim any exemption in your house rent allowances. रॉन्ग होता है ना वो, मतलब तुम ऐसे थोड़ी बेवकूफ बना सकते हो कि हर जगह से तुम कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन ले लोगे। बट इस क्वेश्चन में है, तो जैसा होगा अपना कर देना।
तो सिमिलरली हम लोगों ने इंटरेस्ट यहाँ पे डाल दिया। अब हमारी हाउस प्रॉपर्टी की तो आ गई इनकम, ठीक है, क्योंकि हमें ग्रॉस में लिखना था। अब आता है हमारा टीडीएस वाला, ठीक है। सो हमारा माइनस 21,40,000, 5,35,000 का इसका मतलब हमारा टीडीएस हमारे टेनेंट ने गवर्नमेंट को पे कर दिया। सो अगर ऐसा कोई आता है केस तो यहाँ पे लिखा होगा आपका ना कि टेनेंट ने 5,35,000 पे किया है, वो यहाँ पे डेफिनेटली आएगा ये अमाउंट आपका। अगर कहीं पे भी नेट है तो उसका जो नेट अमाउंट का जो टैक्स होगा वो आपके इसमें आएगा, टीडीएस में, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने टीडीएस में, ठीक है। दिस इज योर टीडीएस, ओके। ओके, यहाँ पे we'll write about any TAN number, so I'm using the same TAN number MUMH03, ठीक है, MUMH03 189E 189E, ठीक है। Now the value is 5,35,000. So here it will come 5,35,000. This is deducted in own hands. Then here also I'm claiming the same amount here, 5,35,000. Now the gross amount is, what is the gross amount? Whatever we have entered in the house property. So it is 26,75,000. So it is 26,75,000 because this is the gross amount on which we have deducted the tax, and this will come income from house property. Okay, now I'll validate this. The sheet is okay. So this is the way you have to do it. अगर और भी हैं तो इनको और आप लिखते चलोगे. Am I clear? This is regarding to the TDS. Okay. जहां पे भी TDS है, जहां पे भी नेट अमाउंट है, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू ग्रॉस. उस पर्टिकुलर हेड में आप सिर्फ ग्रॉस लिखोगे और जो भी आपका टैक्स कटा है वो आपकी TDS शीट में आएगा, वो पर्टिकुलर उसमें नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द हाउस रेंट, ठीक है। सो हमारा कैपिटल गेन्स भी हमने कर लिया है, हमने हाउस प्रॉपर्टी के भी दोनों सिनेरियो समझ लिए, हमने अदर सोर्सेज भी कर लिया है, हमने टीडीएस भी कर लिया, हमने सैलरी भी कर लिया है। आप किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, कर लेंगे 18 से पहले। अगर टाइम निकला तो वील प्रैक्टिस वन मोर क्वेश्चन, अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, बट वील सी जैसा भी सर्कमस्टेंसेस रहेगा। अदरवाइज यू गाइज डेफिनेटली कैन सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू लाइक, और उसमें अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी एनी टाइम। ठीक है, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।